Good morning, students. Today we are going to continue our chapter number 2, fractions and decimals. So as you already know that we have completed our exercise 2.4, which is fraction based, and now from today we are going to start our exercise 2.5, which is decimal based. So first I need to just recall some basic concepts about the decimals. So here you can see a decimal place value chart, student. A decimal place value chart can be explained as we are having a decimal number. Let us suppose I'm writing 58.386. This is our decimal number. Student, in this decimal number we are having two parts. The first part is on the left hand side of the decimal, that is called the integer part. It is read just like the normal number. So on the left hand side we are just going to read it as 58. Now on the right hand side of the decimal we are having 386, and this 386 is a decimal part of this decimal number. So we are going to read this decimal number as 58.386. Now students, this decimal number can be written here. Now if we have to find that what is the place value of each digit in this decimal number, so I'm going to write over here. In the ones place we are having 8, so I'm going to write 8 over here because it is on the ones place. Now on the tens place we are having 5, so it is on the tens place. So 58 is just like the normal number, normal integer number. Now on the right hand side of the decimal we are having first digit as 3, and 3 student is on the 10th place. It is on the 10th place, so I'm going to write it over here. Now next we are having 8 on the 100th place, so I'm going to write over here. Next we are having 6 on the 1000th place. So I can say that 58 can be written as 50 plus 8, isn't? And after that 3 can be written as 3 upon 10 because it is on the 10th place. After that we are having 8 on the 100th place. I'm going to write it as 8 upon 100. And next I'm going to write 6 upon 1000 because it is on the 1000th place. So in this way student, you can also see that how we can expand the normal decimal number into the expanded form. This is just the expanded form of a normal decimal number. Now students, we have to see that how we can convert decimal number into the fractional number. So let us suppose I'm having a decimal number 3.5. Now 3.5, I have to remove this decimal. On removing this decimal, as you can see that I'm having digit 5, which is a 1 digit. So I'm going to place 1 0 over here, and after that 10. Because I'm having only one number on the right hand side of the decimal, so I'm going to place 10. So 3.5 can be written as 35 upon 10. Similarly, if I have to convert 6.73, now you can see that we are having two digits after the decimal, or I can say two digits on the right hand side of the decimal. So I'm going to place 100 because for two digit I have to place 100 on the denominator. So 6.73 can be written as 673 upon 100. So student, in this way you can convert a normal decimal number into a fractional number. Now next we have to see that how we can convert a fractional number into a decimal number. Now we are having a fractional number as 5 upon 10. Now you can see we are having 10, that is 1 0 on the denominator. So I'm going to place decimal after the one digit. From the right hand side I'm going to place decimal after the one digit, so it is 0.5. If student, I have 5 upon 100, now you can see I have to place decimal after the two digit. Okay, so I'm going to place 5 over here, and I need two digit student, so I will place 1 0 to make it two digit, and after that I will place decimal and then 0. So 5 upon 100 can be written as 0.05. Now next student, one more example. You can see I am having 63 upon 100. So as you can see we are having two zeros in the denominator, that is 100. So I'm going to place decimal after the
2 digit. So here you can see we are having first digit, then second digit, then decimal, then 0. Okay, so 63 upon 100 can be written as 0.63. Chalo student, now it's your turn. Now you have to guess that how we can write 75 upon 10. Just pause the video for some time and try that how we can write 75 upon 10 in decimals. I hope you all have done that. Answer is, student, as you know that we are having 10. 10 means 10. That's why I have to place decimal after the 1 digit. So I'm going to place decimal over here and then 7. So 75 upon 10 can be written as 7.5. Now student, we are having a metric scale over here, that how we can convert a unit into another unit. So student, we are having a metric scale and it is as follow. You can learn it as kilo, hecto, deca, meter, deci, centi, milli. Or you can say that kilo, hecto, deca, unit, deci, centi, milli. This unit here, student, can be meter, gram or liter. Okay, if I am talking about the meter scale, so you are having kilometer, hectometer, decameter, meter, decimeter, centimeter and millimeter. If I am talking about the gram scale, then you will have kilogram, hectogram, decagram, decigram, decagrams, gram, decigram, centigram and milligram. And if I am having liter scale, so you will have kiloliter, hectoliter, decaliter, liter, deciliter, centiliter and milliliter. Now student, one more thing that you have to learn, that when we have to convert a greater unit into the smaller one, okay, that we have to convert a greater digit into a smaller one, or I'm going to go downward, then we always have to multiply. And when we have to convert a smaller digit into the greater one, we always have to divide. Okay, that means I can say जब हमें ऊपर से नीचे की तरफ आना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हमें नीचे से ऊपर की तरफ जाना होता है तो हम डिवाइड करते हैं. So student, let me explain it to you with the help of example. Suppose we have to convert 5 gram into kilogram. So as you know that from to convert gram into kilogram, we have to move from here to here. Okay, हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है. नाउ यू कैन सी दैट वी आर गोइंग अपवर्ड. और आपको बताया जब हमें छोटे से बड़े की तरफ जाना होता है, वी ऑलवेज हैव टू डिवाइड, है ना. हमें ऊपर की तरफ जाना है, वी ऑलवेज हैव टू डिवाइड. सो डिवाइड करना है, ये तो हम लोग को पता है. अब हमें किससे डिवाइड करना है स्टूडेंट? सो यू ऑलरेडी नो दैट मीटर से किलोमीटर तक जाने के लिए, सॉरी, या फिर ग्राम से किलोग्राम तक जाने के लिए वी हैव टू मेक 3 जम्प्स. फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड third one. So these 3 jumps lead us to 1000. So we have to divide 5 by 1000. डिवाइड करना है, ये पता था. किससे करना है ये भी पता चल गया. So we have to divide 5 by 1000 to convert gram into kilogram. Okay, and you know that 5 by 1000 will lead us to 5 over here, 0, 0, and after that decimal and then 0. It will be 0.005 kilogram. So in this way student, we can convert any unit into the another unit. ओके, या फिर आपको अगर डायरेक्टली लर्न है कि किलोग्राम से ग्राम तक का कन्वर्जन जो होता है 1000 में डील करते हैं, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं. या फिर अगर आपको इस मेथड से करना है, बिकॉज ये मेट्रिक स्केल हम लोग को हर यूनिट का बता सकता है. दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू. अदरवाइज़ अगर आपको सिंपल कुछ आता है लाइक सेंटीमीटर और मीटर, तो सिंपली आपको पता है कि इनमें 100 का रिलेशन होता है ना. ग्राम एंड किलोग्राम या मीटर या किलोमीटर, इन सब में 1000 का रिलेशन होता है. बट इसके अलावा स्टूडेंट अगर कोई और आ जाए तो इसके लिए हम लोग मैट्रिक स्केल का यूज़ करके उनको फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आई एम थिंकिंग दैट I have created a base for the decimals now. Now students, we can start our exercise 2.5. So exercise 2.5, question number 1 is which is greater, and as you can see we are having 6 different parts over here. The part first is 0.5 or 0.05. Student, if you have to compare between two decimal number, we have to compare it first its
integer part, and after that we have to compare its decimal part. So if you can see 0.5, in 0.5 and 0.05 we are having integer part as same, we are having 0 in both the integer parts. Now in the decimal part you can see we are having 5 first over here, and we are having on the another number we are having 0. So clearly 5 is greater than 0, that's why 0.5 is greater than 0.05. ओके, तो हमें कैसे करना है, हम लोग को नंबर टू नंबर कंपेयर करना है. ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट लाइक जैसे कि मैं अगर बोलूँ 3.768, ये एक नंबर है और एक नंबर है 3.8. ओके, तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि वो 3.768 को बड़ा बता देंगे, बिकॉज दे आर जस्ट काउंटिंग द नंबर एंड दे कैन टेल दैट 768 इज़ ग्रेटर, बिकॉज यहाँ 3 नंबर्स एंड 8 तो छोटा नंबर है 768 से, दैट्स वाई 3.768 विल बी ग्रेटर. बट स्टूडेंट नो, वट वी हैव टू डू, वी हैव टू कंपेयर नंबर बाय नंबर. सबसे पहले हम लोग 3 को कंपेयर करेंगे 3 से, दे बोथ आर सेम, एंड ऑन द डेसिमल पार्ट नाउ वी आर हैविंग 7 ओवर हियर एंड हियर वी आर हैविंग 8. ओके, सो 8 क्योंकि 7 से बड़ा है, दैट्स वाई 3.8 3.768 से ग्रेटर है. ओके, तो आपको नंबर टू नंबर कंपेयर करना है. चलिए हम ट्राई करते हैं अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस. चलिए, सो नेक्स्ट वी आर हैविंग 0.7 और 0.5. क्लियरली 0.7 और 0.5 में तो 0.7 ही ग्रेटर है. 7 और 0.7, स्टूडेंट 7 डेसिमल नंबर नहीं है, इट इज़ एन इंटीजर नंबर. नाउ यू कैन सी दैट 7 कैन बी रिटन एज 7.0 एंड 0.7. आपको क्लियरली पता चल रहा है इसके इंटीजर पार्ट में यहाँ 7 है, यहाँ 0 है. क्लियरली 7 विल बी ग्रेटर देन 0.7. सिमिलरली आप इसके और पार्ट्स भी स्टूडेंट अपने आप से कंपेयर करने का ट्राई करेंगे. ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम लोग का वो है एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग, एंड वी आर हैविंग 5 डिफरेंट पार्ट्स ओवर हियर. सो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स पैसे और रुपीज़ में क्या रिलेशन है. आपको पता है कि 1 रुपीज़ में, रुपीज़ 1 में हम लोग के 100 पैसे होते हैं, है ना. तो स्टूडेंट अगर हम लोग को रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है, यानी बड़ी क्वांटिटी को छोटी क्वांटिटी में करना है, तो हम लोग को सिंपली मल्टीप्लाई करना होता है 100 से. बट अगर हम लोग को पैसे को रुपीज़ में करना है, यानी कि एक छोटी क्वांटिटी को बड़ी क्वांटिटी में करना है, देन वी हैव टू डिवाइड इट. सो बेसिकली हम लोग को जितने भी ये गिवन हम लोग को पार्ट्स गिवन है, उसको हम लोग को रुपीज़ में करना है डेसिमल्स का यूज़ करते हुए. सो आपको गिवन है 7 पैसे. अब 7 पैसे यानी कि 7/100 रुपीज़, बिकॉज हम लोग को इसे रुपीज़ में कन्वर्ट करना है. एंड आपको पता है पैसे को रुपीज़ में करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं. एंड 7/100 कैन बी रिटर्न इन द डेसिमल एज 0.07, है ना, बिकॉज यहाँ पे 2 zeros हैं और हम लोग को 2 नंबर्स चाहिए होंगे आफ्टर डेसिमल. सो इट विल बी रुपीज़ 0.07. सिमिलरली 7 रुपीज़ 7 पैसे कैन बी रिटर्न एज, बेटा 7 रुपीज़ तो ऑलरेडी रुपीज़ में है ही. अब 7 पैसे को अभी हमने ऊपर कन्वर्ट किया है 0.07. सो टू मेक इट अ होल नंबर, या एक कह सकते हैं कंप्लीट बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे. अब 7 रुपीज़ और 0.07 को जब आप ऐड करेंगे यू विल गेट रुपीज़ 7.07. ओके, तो इस तरीके से हमें इसके रेस्ट ऑफ द पार्ट भी स्टूडेंट अपने आप से करने हैं. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इंटू मीटर एंड किलोमीटर. हमें सेंटीमीटर वाले यूनिट को पहले मीटर में कन्वर्ट करना है एंड आफ्टर दैट किलोमीटर में करना है. तो चलिए, जैसे कि मैंने आपको मैट्रिक स्केल में बताया कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, किलो, आफ्टर दैट हेक्टो, डेका, मीटर, बिकॉज हम लोग यहाँ यूनिट मीटर में है, मीटर, किलो, हेक्टर, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी एंड मिली. स्टूडेंट इसको वन मोर वे आई कैन मेक यू रिमेंबर दैट किलो, हेक्टर, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली अगर इस तरीके से नहीं हो रहा है तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं. किंग हेनरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच. ओके, आप जिस भी फॉर्म में आपको इसको लर्न कर सकें आप इसे लर्न कीजिए. सो बेसिकली हम अगेन अपने क्वेश्चन में आते हैं कि 5 सेंटीमीटर को मीटर में किस तरीके से करेंगे. तो सेंटीमीटर स्टूडेंट यहाँ है और मीटर है यहाँ. तो टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर we are going upward, that means we have to we are converting a smaller unit into the bigger one, then we have to divide, isn't. एंड किससे डिवाइड करना होगा, तो सिंपली आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे हम 2 जंप कर रहे हैं, दैट मीन्स हम लोग को 100 से डिवाइड करना होगा. सो 5 सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड करके हम
अपना आंसर लेके आएंगे 0.05 मीटर। सिमिलरली 5 सेंटीमीटर को जब हम किलोमीटर में करने के लिए डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट? 1 2 3 4 5 zeros, दैट मीन्स 1 लाख। सो हम लोग को 5 को 1 लाख से डिवाइड करना होगा, 1 2 3 4 5, क्योंकि लाख में हम लोग के 5 zeros होते हैं। नाउ अब जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग को 5 डिजिट्स चाहिए आफ्टर डेसिमल। सो 5 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 एंड आफ्टर दैट डेसिमल एंड आफ्टर दैट 0। इस तरीके से हम 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। नाउ वी आर मूविंग बेटा। अच्छा, इसका जो सेकंड पार्ट है ये हम लोग घर आपको मैं कन्वर्ट करने के लिए दे रही हूँ। आप 35 मिलीमीटर को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, फिर मीटर में, एंड देन आफ्टर दैट किलोमीटर में। खुद से ट्राई करेंगे इसको स्टूडेंट। नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस इन किलोग्राम, एंड अगेन इसमें 3 पार्ट्स हैं। मैं इसका पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड करने वाली हूँ, सेकंड पार्ट आप थर्ड पार्ट इसका खुद करेंगे। 200 ग्राम को किलोग्राम में करना है, अगेन एक छोटे यूनिट को बड़ी यूनिट में करना है। ग्राम और किलोग्राम में 1000 का रिलेशन होता है, चाहे तो आप ऐसे करें या फिर वो मेट्रिक स्केल से लर्न करके कीजिए। सो जब हम लोग 200 को 1000 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 0.2, बिकॉज या तो आप ऐसे कर सकते हैं इन 2 zeros को 2 zeros से कैंसिल कर दें, एंड 2/10 को क्लियरली हम 0.2 लिख सकते हैं, है ना। तो ये किस में बदल गया हम लोग का? किलोग्राम में। सिमिलरली 3470 ग्राम को भी हम अगेन 1000 से डिवाइड करके हमारा आंसर आएगा 3.470 ग्राम। अब जो थर्ड इसका क्वेश्चन है स्टूडेंट वो है 4 किलोग्राम 8 ग्राम। देखिए 4 किलोग्राम तो ऑलरेडी किलोग्राम में है ही। 8 ग्राम को जब हम कन्वर्ट करेंगे इट विल बी 8/1000, एंड 8/1000 स्टूडेंट कितना आएगा? 0.008, है ना, बिकॉज 3 नंबर्स है, हम लोग को 3 डिजिट्स चाहिए आफ्टर डेसिमल। नाउ 0.008 को हमें 4 से क्या करना पड़ेगा? ऐड, ताकि हमारी एक होल नंबर, एक होल क्वांटिटी बन सके। जब आप 4 को ऐड करेंगे 0.008 से यू विल गेट 4.008 किलोग्राम। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 ये है स्टूडेंट, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे कि मैंने प्रीवियसली आपको ये चीज़ समझा दी है किस तरीके से हम एक्सपेंडेड फॉर्म करते हैं। 20 को हम सिंपली 20 ही लिखेंगे, बिकॉज 20 को हम लोग और एक्सपेंड नहीं कर सकते, या फिर आप 20 + 0 लिख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का जो 10th प्लेस में 0 है तो इसे लिखेंगे 0/10, एंड नेक्स्ट हम लोग का 100th प्लेस पे 3 तो हम लोग इसे लिखेंगे 3/100। तो इस तरीके से ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। आप इसकी और पार्ट्स भी ट्राई कर सकते हैं। वी आर हैविंग 4 डिफरेंट पार्ट्स, तो आप इसको होमवर्क में जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो आप इसको होमवर्क में ट्राई करेंगे। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब हमें इस क्वेश्चन में राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। ये जो नंबर्स हम लोग को गिवन है इसमें प्लेस वैल्यू बतानी है 2 की। हर नंबर में 2 प्रेजेंट है, वो 2 किस प्लेस पे प्रेजेंट है ये बताना है। तो देखिए यहाँ हम लोग का क्लियरली इंटीजर पार्ट में हम लोग का 2 प्रेजेंट है, एंड 2 इज़ इन द वंस प्लेस। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूँ इस पार्ट की, 5th पार्ट की, तो यहाँ 2 कहाँ प्रेजेंट है स्टूडेंट? डेसिमल पार्ट में। और डेसिमल पार्ट में हमें पता है ये कौन सा प्लेस है, ये वाला प्लेस है हम लोग का 10th, ये 100th एंड ये 1000th। तो 2 की जो प्लेस वैल्यू है इस नंबर में वो है 1000, एंड इन द सिमिलर वे आप इसके रिमेनिंग पार्ट भी खुद से ट्राई करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 इज़ इम्पॉर्टेंट एंड बहुत इंटरेस्टिंग भी है। चलिए देखते हैं। दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस A to B। दिनेश एक बच्चा है, ही इज़ गोइंग फ्रॉम प्लेस A to B एंड देन फ्रॉम देयर ही इज़ गोइंग टू प्लेस C। दैट मीन्स उसने ये पाथ कवर किया है ना, A से B एंड आफ्टर दैट B से C। अब बोल रहे हैं कि A जो है वो 7.5 किलोमीटर अवे, दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये कितना है 7.5 किलोमीटर, एंड B इज़ 12.7 किलोमीटर फ्रॉम C, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है 12.7 किलोमीटर। नाउ आयूब एक स्टूडेंट है, ही इज़ गोइंग फ्रॉम प्लेस A to D एंड देन आफ्टर दैट फ्रॉम D to C। दैट मीन्स वो ये पाथ ट्रेवल कर रहा है। अब देखिए ये भी गिवन है कि D जो है वो A से 9.3 किलोमीटर अवे है, एंड सिमिलरली C जो है वो D से 11.8 किलोमीटर अवे है। तो ये हम लोग को गिवन है, एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन इज हु ट्रेवल्ड मोर एंड बाय हाउ मच। किसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया और कितना। तो दिनेश और आयूब में से किसने डिस्टेंस ट्रैवल किया और कितना ट्रैवल किया ये हम लोग को फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए बेटा जो डिस्टेंस ट्रैवल है दिनेश का वो क्लियरली क्या था AB एंड देन BC, है
ना। तो दोनों को ऐड करके हम सिंपली क्या फाइंड कर सकते हैं कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है दिनेश में। तो हम लोग 7.5 को सिंपली 12.7 से ऐड कर देंगे। अच्छा, ऐडिंग के लिए आप ध्यान रखेंगे कि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लगा करके आफ्टर दैट आप उसकी 10th वैल्यू ऑन द राइट हैंड साइड प्लेस करें एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आप उसकी वंस वैल्यू प्लेस करें। तो बिल्कुल डेसिमल के नीचे डेसिमल सेट करने के बाद आप इनको ऐड करेंगे। सिमिलरली हम लोग आयुब का डिस्टेंस निकाल सकते हैं AD प्लस DC करके, और AD की वैल्यू थी 9.3 एंड देन DC की वैल्यू है 11.8। इनको ऐड करने के बाद हम इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब आप देख सकते हैं क्लियरली कि डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है दिनेश ने वो है 20.2 और आयुब ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो है 21.1, isn't? So 21.1 is clearly greater than 20.2. So I can say that आयुब ट्रैवल मोर डिस्टेंस। अब कितना ट्रैवल किया है इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों डिस्टेंस का डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो चलिए 21.1 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 20.2 से, देन वी विल गेट 0.9। सो बेसिकली आयुब ने ज़्यादा ट्रैवल किया है। कितना ज़्यादा ट्रैवल किया है, 0.9 किलोमीटर उसने दिनेश से ज़्यादा ट्रैवल किया है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Shama bought 5 kilogram 300 gram apples and 3 kilogram 250 gram mangoes, and Sarla bought 4 kilogram 800 gram oranges and 4 kilogram to 150 gram bananas. Who bought more? तो बेसिकली शामा ने कुछ एप्पल्स खरीदे, कुछ मैंगोज़ खरीदे और सरला ने ऑरेंजेस एंड बनानास खरीदे हैं। तो किसने ज़्यादा फ्रूट्स खरीदे हैं, बेसिकली हम दोनों के ही फ्रूट्स की क्वांटिटी निकाल देंगे कितनी है डेसिमल्स में, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू कंपेयर दैम। देखिए शामा ने जो बॉट किए हैं वो है ये फ्रूट्स, और दोनों को ऐड करेंगे। जब आप ऐड करेंगे तो किलोग्राम को किलोग्राम से ऐड कीजिएगा और ग्राम को ग्राम से ऐड करेंगे। सो वी विल गेट 8 किलोग्राम 550 ग्राम। अब बेटा हम लोग को इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है 8 तो ऑलरेडी किलोग्राम में है। ग्राम को हम जब किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे वी हैव टू डिवाइड इट बाय 1000, एंड 550 व्हेन डिवाइडेड बाय 1000 यू विल गेट 0.550, है ना। एंड जब हम इसमें 8 ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 8.550 किलोग्राम। एंड सिमिलरली हम लोग सरला के लिए भी उसके फ्रूट्स क्या कर देंगे, फाइंड आउट कर देंगे टोटल फ्रूट्स उसने कितने बॉट किए। तब आप कंपेयर कर सकते हैं कि दैट्स शामा बॉट 8.550 किलोग्राम एंड सरला बॉट 8.950 किलोग्राम। क्लियरली सरला बॉट मोर फ्रूट्स, सो हियर वी आर हैविंग आंसर। Now we are moving to the last question of this exercise, that is question number 9. Question number 9 है student, how much less is 28 किलोमीटर than 42.6 किलोमीटर। कि 28 किलोमीटर कितना कम है 42.6 किलोमीटर से। कोई नंबर किसी से कम फाइंड करना है, कितना कम है, तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए डिफरेंस फाइंड कर देते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे 42.6 में से 28 किलोमीटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब 42.6 तो ऑलरेडी हम लोग का कैसा नंबर है, डेसिमल नंबर है। बात है 28 की, 28 डेसिमल नंबर नहीं है तो किसी नॉन डेसिमल नंबर को डेसिमल हम लोग उसके ऑन द राइट मोस्ट साइड में दे देते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं 28.0। अब आप क्लियरली 42.6 को 28.0 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यू विल गेट 14.6। तो हम कह सकते हैं कि 28 किलोमीटर जो है वो 14.6 किलोमीटर लेस है 42.6 किलोमीटर से। सो दिस इज़ अवर आंसर स्टूडेंट। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज आर इन योर होमवर्क, ठीक है। मतलब जो पार्ट हम लोग के रिमेनिंग रह गए हैं वो आपके होमवर्क में है। कोई भी क्वेरीज अगर होती है आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।